Hello students, welcome to this lecture on optical fibers. In this course on basic instruments, we were discussing optical instruments in this unit, and in previous 2-3 lectures we have talked about lenses, mirrors, prisms, spectrometers, telescopes, microscopes, and polarizers, filters, a lot of that components we have covered so far. Today we are going to discuss a very important tool, that is optical fiber. We will look forward its effect, its impact in telecommunications, and its basic principle, how does it works, and a bit history of it, how it has developed in course of time. So you can see the picture here. These are optical fibers. Why do we call it optical fibers? Because there is something related with the light. So optical fiber is a technology. It has revolutionized the field of telecommunication, and today's modern communication system is based on this technology. Actually, it is a thin, flexible, transparent filaments made of glass or plastic that is capable of transmitting light signal over long distances with minimum signal loss. This is the basic crux of this technology, and the principle behind which it works is total internal reflection. So here in this course we are assuming that you are familiar with some basic properties of light and phenomenon associated with this. So it is based on total internal reflection, TIR, we write in short, to confine and guide the light signal through the fiber core, allowing the high speed and high bandwidth data transmission. So it is not very old. It started in 1970s, and today it is very important for all long distance communication systems that has become faster, more reliable, and more efficient than traditional system. Today optical fiber is used in wide range of applications. Here we will talk about its history, its technology, and its application in bit more detail. So let us move further. Here we are talking about how it developed. So it starts in the 19th century. 19th century में कुछ ऐसे demonstration हुए जिसमें ये देखा गया कि जो guide light है, the concept of guiding light using water jets to direct light over long short distances. So you see, this is the very starting thing when this technology comes in the picture. These basic experiments are the guiding force for this. Here you see there is a beaker, water is filled here, you have an outlet, water is flowing here, and when you put a light here, so what happens? Light goes like this, and then here it is bending. So this is important thing. This is the basic crux of this development. And in 1952, Narendra Singh Kapani, he demonstrated that light could be transmitted through a bundle of glass fibers, which he called optical fiber. There is very interesting book, The Man Who Bent Light. He is known as father of fiber optics. This book is available on Amazon. You can read it if you get time. This will be an interesting story of how this whole communication system has developed, and how important the work was Narendra Singh Kaplani did. So in 1970, Corning Clark's work developed the first low-loss optical fiber, which paved the way for development of practical optical fiber communication systems. And उसके बाद से 1970s के बाद
ऑप्टिकल फाइबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया, जहां हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इसको यूज करते हैं। इसके पहले ट्रेडिशनल कॉपर केबल्स वर यूज्ड एंड टुडे the optical fibers have replaced it to make it more efficient and more better communication system. Optical fibers are used in wide range of application, including telecommunication, medical imaging, scientific research, and it keeps on improving, and it keeps on improving in the continuous research continues to work on to improve its performance and capabilities. So it is very useful, and in future also it has a lot of promising things. This is brief history of how it developed in time scale, and here we are trying to discuss its basic principle. So I said that total internal reflection is the phenomena, and here let us try to understand what this phenomena is. So actually, if you see, there are two mediums. Here we are seeing water and air. They have different refractive indexes, and this is normal. And here, if you put an incident ray, light goes here, it make theta1 angle to the normal, and here it refracts. Okay, incident ray, this is refracted ray. So we understand refraction phenomena. This angle plays very critical role here. So this theta1, this theta2. Theta1 is the incident angle. If this angle, a critical angle is there, this is known as theta c, जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं. यहाँ पे क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्रैक्ट हो रही लाइट, वो पूरा 90 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गया. ये एंगल, दिस एंगल is changed to 90 degrees. So here you see this angle is 90 degree. So practically what is happening? This is not going out this medium. The light is there. And this is what we call total internal reflection. Here we set the angle. ये critical angle है. इससे जब ज़्यादा angle करेंगे तो light जो है बाहर नहीं जाएगा. This is what total internal reflection is. Let us try to figure it out. Here you see in the second picture, this is optical fiber. Here happening the same thing. Light goes here, then total internal reflection, then here. It is confined in this optical fiber. This is what the working principle of this. So here we have three components of this optical fiber. क्या है? एक fiber core है, एक cladding है और एक coating है. तो core is the central part. ये जो अंदर हम लोग ब्लू देख रहे हैं, इसमें ब्लू कलर में, this is core of this optical fiber. This is central part where light travels. Cladding क्या है? ये इसके बाहर का मीडियम. जैसे यहाँ हम लोग दो मीडियम देख रहे हैं. So cladding is different material. ये क्या करता है? It helps to confine the light within. So ये जो हम लोग critical angle बोल रहे हैं, it is related to this refractive indices of medium 1 and medium 2. और उसके ऊपर कोटिंग है. कोटिंग क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है बाकी फैक्टर्स से, डैमेज ना हो, environmental factor like temperature and all. So all that things to protect it. So this is basically तीन component हैं, core है, cladding है और coating है, and it has important role. All has its own role. So optical fiber is basically based on the principle of total internal reflection, as we discussed, where light entering the fiber core is reflected back into the core as it encounters the boundary between the core and cladding. जैसे ये core cladding की boundary पे आएगा, total internal reflection हो जाएगा, and it will go back in the system. It will not go out of this core. So the reflection keeps the light traveling within the core of fiber, allowing it to transmit data over long distances without significant attenuation or signal loss. Loss कम है, और यही कम्युनिकेशन का एक बड़ा पार्ट होता है. जब भी हम किसी चीज़ कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वी डोंट वांट सिग्नल का लॉस बहुत ज़्यादा ना हो, एटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा ना हो, तभी हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन या इफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं. सो हियर वी डिस्कस अबाउट इट्स बेसिक प्रिंसिपल, कैसे ये काम करता है और क्या होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं. नाउ लेट अस मूव फर्दर. थोड़ा सा हम लोग इसके और डिटेल्स की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे जब हम ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ रहे हैं.
तो ये कह रहा है कि जो कोर होता है फाइबर का, हमने बताया कि 3 चीज के मिलके बना है, तो कोर क्या होता है? दिस इज मेड ऑफ अल्ट्रा प्योर ग्लास और प्लास्टिक, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर must be higher than surrounding cladding, then only this phenomena of total internal reflection is possible. The cladding is made of material with lower refractive index than the core. ये भी ग्लास या प्लास्टिक से ही बना है, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम है जो कोर का मटेरियल है. And the refractive index difference between core and cladding is what allows light to be confined within the core through total internal reflection. तो इसका जो डिफरेंस है, दिस इज इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो हमें हेल्प करता है उस लाइट को उसमें कन्फाइंड रखने में. Then the light travels down the core of the fiber in form of pulses of light, and these pulses of light are generated by a light source, लेजर या एलईडी से. हम लोग आगे के लेक्चर्स में लेजर की भी बात करेंगे कि लेजर क्या होते हैं. एंड द लाइट पल्सेस देन ट्रांसमिटेड टू द फाइबर एंड डिटेक्टेड एट द रिसीविंग एंड बाय अ फोटो डिटेक्टर. एक लाइट सोर्स है, एक लाइट डिटेक्ट करने वाला है, और ऑप्टिकल फाइबर उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन ऑप्टिकल फाइबर. फिर दूसरी चीज एक है एक्सेप्टेंस एंगल. व्हाट इज दिस एक्सेप्टेंस एंगल? दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग इट्स परफॉर्मेंस. कोई ऑप्टिकल फाइबर कितना अच्छा होगा, ये इसके लिए एक ये फैक्टर है एक्सेप्टेंस एंगल. एक्सेप्टेंस एंगल होता क्या है? इज द मैक्सिमम एंगल एट विच लाइट कैन इंटर द फाइबर एंड स्टिल बी कन्फाइंड विद इन द कोर. एक्सेप्टेंस एंगल इज द एंगल, वो मैक्सिमम एंगल है जहां से अगर लाइट फाइबर में इंटर करे तो उसी में कन्फाइंड रहेगा. And it is determined by the difference in refractive indices between the core and cladding as well as the diameter of the core. So there are here in discussion we are getting to know about important parameters, important factors which are determining its performance. So acceptance angle generally क्या होता है? It is less than 10 degree for single mode fiber and up to 60 degree for multi mode fiber. What is single mode fiber? What is multi mode fiber? We will discuss about different types of optical fiber, and in that discussion we will explain what is single mode, what is multi mode. So here we are getting into some idea about what is happening actually in this whole process and what are important critical factors which determine the performance of an optical fiber. Now we can say that optical fiber works on confining light. Up to this discussion we understand what optical fiber does. They confine light. कैसे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, और इसकी वजह से हम बहुत सारा डेटा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर पाते हैं बिना किसी या ज़्यादा लॉस नहीं है, विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस और एटेन्यूएशन. एंड द फाइबर कोर एंड क्लैडिंग and coating are important factors, and difference between refractive indices of core and cladding is a very important factor for its operation. In this picture we see this is world map, and here these wires, these connections, mostly these are optical fiber cables in sea, so that we are able to have a very high speed internet and all connect हाई स्पीड कम्युनिकेशन जो भी हम कर पा रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पर बेस्ड है. तो दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इफिशिएंट कम्युनिकेशन. वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड फॉर इंफॉर्मेशन वी नीड समहाउ हाउ इट गोज फर्दर. सो दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर this achievement, or this kind of high speed data is available, high speed internet is available to us, so that we can have access to real world in real time. Okay, so now let us try to figure out how there are different types of optical fiber, और उसमें क्या क्या बेस पे उनको हम टाइप्स क्लासीफाई कर पा रहे हैं. So in this slide if you see, the optical fibers can be classified on the base of material. किस मटेरियल के बने हैं? तो हमने पिछली बार भी बात किया, कुछ ग्लास फाइबर एंड प्लास्टिक फाइबर. ग्लास और प्लास्टिक दो ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हम ये ऑप्टिकल फाइबर्स बना सकते हैं, और इनके अपने फ़ायदे नुकसान हैं. वी विल डिस्कस दिस.
So this is classification on the basis of material and number of modes. तो ये सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर, अभी हमने पिछली बार देखा जब हम डायमीटर की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस एंगल की बात कर रहे हैं, तो दिस इज डिफरेंट फॉर सिंगल मोड एंड मल्टी मोड. तो व्हाट इज दिस? This is classification on the basis of modes. What is modes and how this classification is, we will discuss. And another is refractive index profile. Refractive index is very important parameter for ऑप्टिकल फाइबर. कोर एंड क्लैडिंग, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनका डिफरेंस, तो इसके बेसिस पे भी ये दो तरह से डिवाइड किए जाते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. वी विल डिस्कस ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स. Here you can see the basic classification of optical fibers, or we can say types of optical fibers. Now here let us discuss what is single mode, what is multi mode. Single mode, multi mode ये क्या है? तो you can see here this picture, this is multi mode, this is single mode. Let us try to figure out what is single mode first. Single mode fiber has a small core. You see this core is a small, diameter typically 9 micron and is used for long distance high speed communication. अगर हमको long distance और high speed communication चाहिए तो single mode is preferred. It allows only one mode of light to propagate through the core, resulting in low attenuation and dispersion. It is commonly used in telecommunication network such as those that connect cities or countries. So हमने पहले ही बताया कि ये लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है. इसका कोर पतला होता है और इसमें सिंगल मोड लाइट का प्रोपगेट करते हैं. मल्टी मोड में क्या है? मल्टी मोड इज दिस. हियर यू सी द कोर इज बिट, कोर का डायमीटर ज़्यादा है. सो मल्टी मोड डायमीटर है, फाइबर हैज लार्जर कोर डायमीटर. ये कितना है? 52 62.5 माइक्रोन. हियर इट इज 9 माइक्रोन एंड इट कैन ट्रांसमिट मल्टीपल मोड ऑफ लाइट साइमल्टेनियसली. यहाँ पे हम सिंगल मोड ही ट्रांसफर कर पा रहे थे, ये मल्टीपल मोड ट्रांसफर कर सकता है. लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है कि इसमें हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको प्रेफर नहीं करते, इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रेफर करते हैं. टिपिकली विद इन बिल्डिंग्स एंड कैंपसेस इस तरह की कनेक्टिविटी अगर हमको चाहिए तो हम मल्टी मोड फाइबर यूज करते हैं. इसका अटेन्यूएशन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करते. लॉन्ग डिस्टेंस में यूज करेंगे तो हमारा डेटा लॉस कहीं ज़्यादा होता है. देयर इज हायर अटेन्यूएशन एंड डिस्पर्शन कंपेयर टू सिंगल मोड, बट इट इज लेस एक्सपेंसिव. तो ये थोड़ा महंगा कम है. हर किसी के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ उनके एडवांटेजेस हैं. तो उसी के बेस पे हम अलग अलग तरह के फाइबर्स की बात कर रहे हैं और उनके अलग अलग तरह से इनके डिफरेंसेस क्या हैं इनको भी डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगल मोड, व्हाट इज मल्टी मोड. फिर हमने बात किया था कि मटेरियल के आधार पे इनको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर, एक ग्लास ऑप्टिकल फाइबर. ग्लास और प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसे हैं जो हम उसमें यूज कर सकते हैं. तो ये कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, ग्लास ऑप्टिकल फाइबर कम विद द ग्लास कोर. तो बेसिकली जो कोर है ये ग्लास का है और यहाँ पे इसको ट्रांसमिशन लाइट के लिए हम ग्लास कोर यूज करते हैं. ये डेलिकेट हैं, एक्सपेंसिव हैं और डिफिकल्ट टू हैंडल. लेकिन इसके साथ साथ क्या है, लेस रेसिस्टेंट टू एक्सीडेंटल ब्रेकेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी कम है, एक्सीडेंटल ब्रेकेज हो सकता है. ये सारे तो नुकसान की बात हो गया, लेकिन लॉन्ग रेंज एप्लीकेशन के लिए ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है और इसको रिपेयर करना इतना आसान नहीं है. बिना स्पेशल टूल के इसको रिपेयर नहीं कर सकते. प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर जो है वो थोड़ा सा अच्छा है इस सेंस में कि इसको काट सकते हैं, जोड़ सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं सिंपल टेक्निक से. और शॉर्ट रेंज एप्लीकेशन के लिए इनको यूटिलाइज किया जाता है. और प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर इन लाइट इन वेट एंड ऑफर बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, लेस एक्सपेंसिव है और रेडली अवेलेबल है. ये जो है लाइट को पाथ ट्रेवल करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर इस सेंस में थोड़ा सा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ज़्यादा है प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर की एज कम्पेयर टू ग्लास ऑप्टिकल फाइबर, बट उसके कुछ अपने तरह के एडवांटेजेस भी हैं. सो हियर इज जस्ट कंपैरिजन बिटवीन प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर एंड ग्लास ऑप्टिकल फाइबर. फिर एक बात आया था स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स.
ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे क्लासिफिकेशन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे इनको कैसे स्टेप इंडेक्स ऑफ और ग्रेडेड इंडेक्स, इसके क्या 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 मतलब है। तो होता क्या है बेसिकली, स्टेप इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज यूनिफॉर्म, जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यूनिफॉर्म है थ्रू आउट एंड अंडरगोज एब्रप्ट चेंज एट द कोर क्लाइडिंग बाउंड्री। जैसे बाउंड्री आएगा वहां पे एकदम से चेंज दिखेगा। लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स में क्या है, ये धीरे धीरे वेरी कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मेड टू वेरी ग्रेजुअली सच एज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ कोर। कोर पे मैक्सिमम है और जैसे जैसे दूर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा। ओके, यहाँ पे बता रहा है कि इसका जो डायमीटर होता है कोर का, इट इज 50 to 200 माइक्रॉन इन केस ऑफ मल्टी मोड एंड 10 माइक्रॉन इन केस ऑफ सिंगल मोड, और यहाँ पे ये 50 माइक्रॉन इन द केस ऑफ मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। पाथ ऑफ लाइट प्रोपगेशन इज जिगजैग मैनर, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेडेड इंडेक्स है इसमें कैसा होता है, हेलिकल मैनर में होता है। एटेन्यूएशन इसमें ज़्यादा होता है, इसमें एटेन्यूएशन कम होता है। और तो ये हो गया स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स के बारे में बात। थोड़ा थोड़ा हमने सारे कैटेगरीज को समझने का कोशिश किया। यहाँ पे अगर देखें तो वही चीज़ को इलस्ट्रेट किया गया है, क्या होता है स्टेप इंडेक्स में और ग्रेडेड इंडेक्स में। इफ यू सी स्टेप इंडेक्स में क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जैसे हम ये यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहे हैं इसके कोर से कैसे दूर जाएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज होगा। तो ये कह रहा है कि जैसे यहाँ जा रहा है, दिस इज हाउ इट चेंजेस। ओके, सो यहाँ पे एब्रप्ट चेंजेस हैं, ये ऐसे चेंज हो रहा है, ये ऐसे चेंज हो रहा है। और ग्रेडेड इंडेक्स में क्या है, तो ये क्या है, कोर है, ये कोर है। इसमें देखें कि ऐसे कुछ डिफरेंस है इसके कोर में कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसे चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घट रहा है। फिर यहाँ N2 मतलब क्लाइडिंग, क्लाइडिंग का बात हो गया। तो ये कोर के अंदर का मटेरियल को कुछ ऐसे बनाया गया कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे पूरे थ्रू आउट द कोर इज सेम। यहाँ पे क्या है, जैसे सेंटर से दूर जा रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घट रहा है। दिस इज व्हाट इज। तो बेसिकली क्या है, ये कोर है, ये क्लैडिंग है, और ये बोले जैकेट है, या मतलब कोटिंग जिसको हम लोग कह रहे थे। कि ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं इसमें ऑप्टिकल फाइबर में। क्लैडेड एंड नॉन क्लैडेड फाइबर्स, ये क्या होता है। क्लैडेड हमने बोला इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे नॉन क्लैडेड भी कुछ बात कर रहे हैं। क्लैडेड नॉन क्लैडेड फाइबर, क्लैडेड फाइबर इज एन एडिशनल लेयर ऑफ ग्लास सराउंडिंग द फाइबर कोर व्हिच सर्व एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग and helps to confine the light within the core. Non-cladded fiber doesn't have this layer and typically used in specialized applications such as sensing or laser delivery system. तो कहीं पे ऐसा भी कुछ हो सकता है जहाँ पे हम क्लैडिंग की बात कहें कि क्लैडेड नहीं है, बट बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इसको हम, इसमें ये लेयर नहीं है और ये स्पेशलाइज एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। ईच टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हैज इट्स ओन यूनिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड चॉइस ऑफ फाइबर डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। किस लिए हम कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें हम अलग अलग तरह के जो क्लासेस हैं उनको चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज आवर नीड। अब यहाँ पे थोड़ा हम बात करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्यों इसको टॉप चॉइस माना गया है या है ये डाटा ट्रांसमिशन के लिए। थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं, अलग अलग तरह के क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो एक ये है कि इनका बैंडविड्थ हाई है। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ मतलब अलग अलग वेवलेंथ के लिए हम, एक तरह से हम इन जनरल कह सकते हैं अलग अलग वेवलेंथ के लिए यूजफुल है। तो अगर उसका रेंज ज़्यादा है तो इट इज़ मोर यूजफुल फॉर अस। तो ऑप्टिकल फाइबर हैज ए हायर वेवलेंथ बैंडविड्थ कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉपर वायर। पहले ये काम ट्रेडिशनल कॉपर वायर मतलब कॉपर वायर से पहले ये काम किया जाता था, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर ने उसको रिप्लेस कर दिया। उसके साथ एडवांटेज क्या है इसका कि बैंडविड्थ ज़्यादा है, जिससे कि फास्टर डेटा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट much loss in that. That is why it becomes ideal for high-speed internet connection, telecommunication network and other transmission data intensive application. Second thing is low attenuation. Attenuation means एक तरह से हम कहें कि सिग्नल का लॉस कितना है। ये कह रहे सिग्नल का लॉस मिनिमल है as the light travels through the fiber.
दिस अलाउज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विदाउट द नीड ऑफ सिग्नल बूस्टर की जरूरत नहीं है, रिपीटर की जरूरत नहीं है, ये सब की जरूरत नहीं है, सिग्नल एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस की जरूरत नहीं है। ये ट्रेडिशनल कॉपर वायर से जब हम ये सब करते थे तो वी नीड सच थिंग टू डू दैट बिकॉज डेटा का लॉस होता है, बहुत सारा अटेन्यूएशन उसका हाई है। सो ऑल दैट थिंग्स, ये जो प्रॉब्लम्स थे ट्रेडिशनल कॉपर वायर की, ये इसने इंप्रूव कर लिया, इनकी जरूरत नहीं बची। अनदर थिंग इज इट इज इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एवरीवेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आर एवरीवेयर, तो वो इंटरफियर करेंगे अगर इंफॉर्मेशन में, तभी भी हमको प्रॉब्लम होगा। सो ऑप्टिकल फाइबर इज इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस सच एज रेडियो वेव्स और अदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हिच कैन डिस्टर्ब data transmission in traditional copper wire. That is why it becomes useful in environments where electromagnetic interference is a concern, such as in medical or military application. ये कुछ एग्जांपल बता रहे हैं जहां पे हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का एक प्रॉब्लम है जो डेटा ट्रांसमिशन को बाधित कर सकता है, और ये होता है ट्रेडिशनल कॉपर वायर में। ऐसे ये सब चैलेंजेस थे जो ऑप्टिकल फाइबर में, इनसे हमको एकदम इम्यूनिटी मिल गया। This is not affecting your communication. Another plus point is security. Security क्या है कि ये इतना सिक्योर है, इसको हम बीच में कुछ कर नहीं सकते। It is difficult to tap or intercept the signal without physically cutting the wire, or this makes ideal use in secure applications such as banking, government और military communication के लिए भी ये सब प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसको बिना फिजिकली काटे आप उसका डेटा, उसको इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, और दिस मेक्स इट मोर सिक्योर। अनदर थिंग इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है कि ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो चेंज होते हैं उससे ये इम्यून है, इतना जल्दी उसे फर्क नहीं पड़ता। इट इज आल्सो रेजिस्टेंट टू corrosion which can withstand exposure to harsh chemical or other corrosive substances. So it makes it durable, and this makes it more useful. Another is cost effective. Although optical fiber installation cost may be higher than compared to traditional wire, लेकिन जो इसके लॉन्ग टर्म कास्ट की बात करेंगे, अगर हम तुरंत की बात करें तो इंस्टॉलेशन इसका महंगा पड़ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम इसके मेंटेनेंस को भी देखें तो ये मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा नहीं है और एनर्जी भी सेव कर रहा है, तो इट बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव ओवर टाइम। फॉर थोड़ा सा टाइम स्केल में अगर हम इसको देखें, और इसके साथ ही ये बहुत कॉम्पैक्ट है, और इट इज़ यूजफुल सच एज इन एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, अदर स्मॉल डिवाइसेज जहाँ स्पेस लिमिटेड है वहाँ पर भी ये चीज़ ज़्यादा यूजफुल है। तो दीज आर advantages in a sense, these are positive thing about optical fibers. इसके बाद हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि देखने का कि क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ हमने कुछ कुछ बातें किया। सो हियर वी आर पुटिंग इट इन समराइज फॉर्म। इन टेलीकम्युनिकेशन they are used for high speed internet connections, phone calls, video conferencing, all that things. Today we are taking advantage of all that. So उसके background में optical fiber का बहुत important role है. So this is what makes us feel when we are learning things, when we are understanding behind the scene situation, like we are utilizing all facilities, high speed internet. So when we go through the background of it, कैसे ये सब हो पा रहा है, how it is, इसको हम कैसे enable कर पा रहे हैं, then it gives a different kind of feeling. So in telecommunication, in medical application, जो medical equipments हैं जैसे endoscope and laser surgery, I hope everybody has heard about these very important, critically plays a greater role सर्जरी के लिए। जब पहले सर्जरी होता था तो it was much more challenging, और उसमें कहीं ज़्यादा कुछ काम करना पड़ता था, ज़्यादा कुछ ऑपरेशन होता था, और लेजर सर्जरी से ये सब चीज़ें बहुत लोकलाइज, जहाँ पे प्रॉब्लम है उसी को हम कर पा रहे। सो हियर दिस ऑप्टिकल फाइबर्स आर प्लेइंग a lot of important role due to its flexibility and ability to transmit light without damaging living tissues.
And in military and aerospace, they are also used for secure communication, sensing and navigation. Industrial application, they are used for sensing, temperatures, measurement and structural health monitoring. In entertainment, ये तो सारा इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट में बहुत सारा जो भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इट इज बेस्ड ऑन दैट. तो केबल टीवी सर्विसेज, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ऑल दैट इज possible because of optical fibers. And in scientific research, they are used for construction of large scale telescope with high speed data transmission and sensing. For all that, optical fibers are playing very key role, so they have a lot of importance in our daily life. क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं और जिस पे हमको काम करने का ज़रूरत है, और भी क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, थोड़ा सा हम उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. कि एक तो क्या है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं है. टाइम स्केल में हम देखते हैं तो ट्रेडिशनल कॉपर वायर से इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इंस्टॉलिंग कॉस्ट इज कंपेरेटिवली हायर. बट लॉन्ग टर्म उसके एडवांटेजेस हैं, तो हम हमेशा चाहते हैं कि और कॉस्ट कम कर पाएँ और इफ़ेक्टिव बना पाएँ. तो एक ये चैलेंज है. दूसरा ये है कि इसको हम अगर ऑप्टिकल फाइबर डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करना इतना आसान नहीं है. इट इज़ वेरी फ्रेजाइल and susceptible to damage during installation and maintenance. So this is another challenge. And then another thing is that signal can degrade due to various factors such as bending or misalignment of the fiber. This is also a challenge. और बैंडविड्थ ज़्यादा है, फिर भी कुछ कुछ जगह पे ऐसा लिमिटेशन आता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हम जब करना चाह रहे हैं तो कितना डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे. इसलिए हम चाहते हैं कि और भी बैंडविड्थ ज़्यादा हो एप्लीकेशन के हिसाब से. तो ये एक बात है, ये ज़्यादा है लेकिन फिर भी इससे भी ज़्यादा हम चाहते हैं. और अभी सबको इम्प्रूव करने के लिए देयर लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज सच एज डेवलपिंग न्यू मटेरियल्स. जो हम लोग कोर क्लैडिंग ये सब की बात कर रहे हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ये सब की बात कर रहे हैं. तो मटेरियल साइंस में जो लोग काम करते हैं वो लोग हमेशा नए नए मटेरियल्स बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम इसका बैंडविड्थ बढ़ा पाएँ, सिग्नल डिग्रेडेशन कम कर पाएँ. सो इट इज गोइंग ऑन. और like nowadays we heard a lot about quantum computing, sensing. इसमें भी हमको हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन चाहिए, प्रिसीजन सेंसर कैप सेंसिंग कैपेसिटी चाहिए. तो ये सब में भी ऑप्टिकल फाइबर इज गोइंग टू प्ले इम्पोर्टेंट रोल. सो दिस व्हाट वी कैन लुक फॉरवर्ड. दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू सपोर्ट इन फ्यूचर इंटरवेंशंस. थोड़ा सा यहाँ पे इसको समराइज किया गया है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं. तो हम लोग इसको शॉर्ट में थोड़ा देख सकते हैं कि लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, ये अच्छी बात है. लेकिन ये जो ट्रांसमीटर है, रिसेप्शन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. तो इसके लिए हमको वैसे इक्विपमेंट भी चाहिए. मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ फाइबर इज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा इधर डिजिटल और एनालॉग फॉर्म. इसके साथ साथ क्या है, ये it is more vulnerable to fiber flux at greater optical power. Consequently, optical fiber may be broken. ये एक disadvantage है. External disturbance is well protected by optical fiber, but क्या कर रहा है, splicing them is more difficult and complicated, costly to maintain the splicing wire. कुछ problem आएगा तो उसको resolve करना थोड़ा सा challenging है. Radar and other signal will not cause disruption in the fiber. जो हमने बोला कि ये का वेवलेंथ बैंडविड्थ हाई होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो सिग्नल में है वो उससे बचते हैं. दिस इज एडवांटेज. एंड एट द सेम टाइम इट इज एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस, उसके खर्च ज़्यादा हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट ऑप्टिकल फाइबर्स. तो हमने एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन में इसको समझने का कोशिश किया कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या हैं, कैसे ये डेवलप हुए, उनकी थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने का कोशिश किया. देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इट्स एप्लीकेशन, इट्स चैलेंजेस एंड फ्यूचर स्कोप. सो वी ट्राई टू कवर अ बेसिक idea about this technology, and now I think you realize how important a role this technology is playing for us to enable us to do much more
high speed communication, and all the things which we are developing in present scenario is based on the backbone of this all communication is optical fiber. So they are playing very key role, very important for today's developments. So today we are stopping here and we will discuss something new in next lecture. So तब तक के लिए यहीं पे रुकते हैं. नमस्कार.